Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are in the pink. So, in this video, I'm going to carry forward this chapter, An Excellent Father, composed by Jane Austen. But, my dear students, before coming to the text or before proceeding towards the text, let me quickly revise and revisit yesterday's lecture again. So, my dear students, Mr. and Mrs. Bennet, with their 3 daughters, lived at Longbourn near Netherfield Park. They had been married for 23 years, but there hardly existed any understanding or compatibility between them. Mr. Bennet, my dear students, you know, he is a jolly person. He is full of wit and humor. He is a mixture of quick parts, sarcastic humor, while as Mrs. Bennet is a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. One day, what happened? Mrs. Bennet was excited to learn that the Netherfield Park had been let at last. It had been taken by Mr. Bingley, a young man of large fortune, about 4 to 5,000 a year, from the north of England, with 3 daughters to be married off. This was really a news to Mrs. Bennet. She wanted Mr. Bennet to visit him as soon as he can. Mr. Bennet, absolutely unaffected by the news, took the whole thing rather casually and remarked that she and the girls might go, or she might send the girls by themselves, which would be better. Mr. Bennet seems to be a factless and irresponsible father. He seems to be least interested in the marriage of his daughters. He often teased and vexed Mrs. Bennet. That's why Mrs. Bennet said to him once, "You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves." So let's now carry forward the text with this paragraph. So take out your textbooks at page number 30. Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. Although my students, Mr. Bennet had refused to visit Mr. Bingley, but he was among the earliest of those who visited Mr. Bingley. हालांकि मिस्टर बेनेट पहले इनकार कर चुका था. वो बोल रहा था नहीं, मुझे मिस्टर बिंगले को नहीं मिलना है, बट वो उन बाकी लोगों में से सबसे पहला बंदा था जो मिस्टर बिंगले को देखने गया था. वेटेड ऑन, माय डियर स्टूडेंट्स, इज अ फ्रेजल वर्ब. ठीक है. सो वेटेड ऑन का मतलब होता है विजिटेड. सो अर्लीस्ट, आप देखिए इसने द का इस्तेमाल किया यहाँ पे, आर्टिकल द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यानी we use article the with the superlative degrees. ठीक है. So earliest का मतलब होता है before the usual or expected time. ठीक है. It's an adverb here. ठीक है. यानी he was like an early bird. ठीक है. ये सबसे पहले जाके मिला था उसे. He had always intended to visit him because it was his he had always thinking of विजिटिंग हिम. ठीक है. ये इसका इंटेंशन था, ये इसने ऑलरेडी प्लान करके रखा था. हमेशा इसको यही एक चीज माइंड में थी कि मैं इस मिस्टर बिंगले के साथ मुलाकात करूं. ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड मींस प्लान्ड. ठीक है. इंटेंडेड मींस टू हैव एज प्लान और पर्पस. सो यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इंटेंडेड इज हेयर ग्रामेटिकली वर्ब. तो अगर हम इसको एज नाउन लेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. एज नाउन इंटेंडेड मीन्स अ पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मैरी. लेकिन यहाँ पे
ये एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसकी मतलब है, इसका मतलब है प्लान्ड। इंटेंड मीन्स प्लान। लेकिन अगर एज नाउन हम इस लेंगे तो इसका मतलब निकलता है a person that you are going to marry. For example, I'll be there with my intended. I'll be there with my intended as noun. ठीक है, so intended is a verb. Intention इसका noun बनेगा या intended. Intended adjective भी है, ठीक है, और इसका adverb बनेगा intentionally. ठीक है, though to the last always assuring his wife that he should not go. हालांकि he had already paid the visit, but ये अपनी वाइफ को हमेशा एश्योर कर रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, परसुएड करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कभी उससे मिलने नहीं जाऊंगा, that he should not go, he is not going to meet Mr. Bingley. Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. Although Mr. Bingley had undertaken a visit, he had already paid the visit, लेकिन मिसेस बेनेट को इसकी खबर नहीं होती है. She is completely unaware about the visit that Mr. Bingley had already paid. It was then disclosed in the following manner. अब इसकी चोरी कैसे पकड़ी गई? It was then disclosed. Disclosed means जब आप कोई चीज unfold करते, खोलना जिसको हम बोलते, reveal. Disclose means रिवील करना, इंकिशाफ करना, यानी अब ये ऐसे खुल गया. ठीक है. Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with. यानी ये अपनी इस दूसरी बेटी को ऑब्जर्व कर रहा था. ठीक है, और वो क्या कर रही थी? वो अपनी इस हैट को ठीक कर रही थी. ट्रिमिंग मीन्स नीट एंड क्लीन रखना. ठीक है, साफ सुथरा रखना. ठीक है. एम्प्लॉयड मीन्स बिजी. Employed means busy. So trimming means actually ये it's a piece of decorative material added around the edge of something. ठीक है, वो लगा रही थी हेड पे कुछ. ठीक है, ठीक कर रही थी. He suddenly addressed her with, तो अचानक से इसने इसको बोला, I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिंगली को ये चीज पसंद आए. We are not to know what Mr. Bingley likes, said her mother, since we are not to visit. हम यहाँ पे ये जानने के लिए नहीं बैठे हैं what Mr. Bingley likes, what he likes or what doesn't he like. ठीक है, we are not here to know it, said her mother. Mrs. Bennet ने कहा, since we are not to visit. जबकि हम वहां उससे देखने ही नहीं जाते, तो हमें क्या फायदा उससे क्या पसंद है तो उसे क्या पसंद नहीं है. But you forgot, Mama, said Elizabeth. Elizabeth interrupted. Oh, Mama, आप एक चीज भूल गई है. That we shall meet him at the assemblies. आपको याद होगा कि हमने उससे कहां पे मिलना है? assemblies में. ठीक है, it's a noun. assemblies is the plural of assembly. ठीक है, लेकिन ये small है यहाँ पे. so यहाँ पे इसकी मीनिंग निकलती है gathering और convocation. ठीक है, यानी हमने उससे मुलाकात करनी है assemblies में. लेकिन अगर हम a को कैपिटलाइज करें यहाँ पे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी. if I capitalize it, if I capitalize the letter A in the assembly, so meaning change होती है. कैपिटल करने से इसकी मीनिंग निकलती है a legislative body, especially that makes up the lower house of legislature, like we have general assemblies, legislative assemblies. ठीक है, so meaning change होती है. power of capitalization, power of punctuation. ठीक है, and that Mrs. Long has promised to introduce him. और मिसेस लॉन्ग ने हमसे वादा किया है कि वो हमें उसका तारुफ करेगी, यानी मिसेस लॉन्ग हमारी मुलाकात उससे कराएगी. I do not believe Mrs. Long will do any such thing. अब यहाँ से मिसेस बेनेट उठती है. मिसेस बेनेट बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं आता है कि मिसेस हॉल ऐसा काम करेगी. She has 2 nieces of her own. उसकी अपनी 2 भतीजी है. She is a selfish woman. She is hypocrite, she is selfish, she is greedy woman. वो कभी ये ऐसा होने नहीं देगी. वो कभी ये नहीं चाहेगी कि मिस्टर बिंगले मेरी बेटी में से किसी एक के साथ शादी करेगी, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेगी मिस्टर बिंगले उनकी नीस में से किसी एक के साथ शादी करे. दैट्स व्हाई फॉर मिसेस बेनेट, मिसेस लॉन्ग इज अ selfish woman. Mrs. Bennet began
scolding one of her daughters. अब मिस बेनेट, आपको पता है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, शी इज उसके पास अंडरस्टैंडिंग पावर भी नहीं होता है. नाउ शी स्टार्टेड रिब्यूकिंग वन ऑफ हर डॉटर्स. एक बेटी में से एक बेटी को वो अब डांटने लगी. बेटियों में से एक बेटी को अब वो स्कोल्ड करने लगी. स्कोल्ड मीन्स एडमोनिश करना, रिप्रिमांड. टू रिब्यूक, डांटना, ठीक है. टू बैंग, अभी उनको तौर तरीके सिखाने लगी. ऐसा मत करो, ये करो, वो करो. डोंट कीप कफिंग सो किटी, फॉर हेवन सेक. मिसेस बेनेट इसको आप बोलेंगे, अरे भाई इस तरह से मत खांसे प्लीज, फॉर गॉड सेक. फॉर हेवन सेक मीन्स फॉर गॉड सेक. डोंट कीप कफिंग सो, डोंट कफ लाइक दिस किटी. ये जो किटी होती है ना, किटी जब आप प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे तो किटी सिली होती है, थॉटलेस होती है, सेल्फिश और फ्लर्टिशियस भी होती है, ठीक है. हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माय नर्व्स. खुदा के लिए मुझ पे थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई, ठीक है. हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माय नर्व्स. आप देखिए मेरी एंजाइटी जो है, जो मेरी वरी है, उसके साथ थोड़ा सा रहम कीजिए. Kitty has no discretion in her cups, said her father. She times them ill. ओहो, किटी को कोई डिस्क्रेशन नहीं मिल रहा है अपनी कप्स में. डिस्क्रेशन मीन्स फ्रीडम. डिस्क्रेशन मीन्स फ्रीडम, द राइट और एबिलिटी टू डिसाइड समथिंग. अब किटी को कोई आजादी नहीं मिल रही है अपनी कप्स में, उसको खांसने की कोई आजादी नहीं मिल रही है. ये उसका फादर कहता है, मिस्टर बेनेट. शी टाइम्स देम इन बिकॉज शी कप्स इन अ स्ट्रेंज वे. वो अजीब तरीके से खांसती है, दैट्स वाई उसको कोई लिबर्टी नहीं मिल रही है, ठीक है. although description it has some other meanings, it also means careful behavior as well, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग निकलती है फ्रीडम, ठीक है. I do not cough for my own amusement, said Kitty fretfully. ओहो, मैं तो अपने enjoyment के लिए नहीं खांसती हूँ. I do not cough for my own merriment, for my own pleasure. Amusement means something which causes to laugh, which causes you to laugh or smile, ठीक है. मैरीमेंट भी बोल सकते हैं आप, एंजॉयमेंट, प्लेजर. मैं तो अपने प्लेजर के लिए नहीं हंसती हूँ. सेड किटी फ्रेटफुली. फ्रेटफुली मीन्स, फ्रेटफुली ग्रामेटिकली एडवर्ब है. फ्रेटफुली मीन्स नॉट रिलैक्सिंग और रेस्टफुल, ठीक है. सो इसका एडजेक्टिव आएगा फ्रेटफुल. फ्रेटफुल मीन्स एज एडजेक्टिव इसका मतलब निकलता है अपसेट और अपसेट एंड वरीड. सो फ्रेटफुली एडवर्ब है. सो फ्रेटफुली इसका मतलब निकलता है नॉट रिलैक्सिंग और रेस्टफुल. Let's return to Mr. Bingley, continued Mr. Bennet. अब मिस्टर बेनेट ने कहा, चले जी मिस्टर बिंगले की ओर रवाना हो जाते हैं, ठीक है. I'm sick of Mr. Bingley, cried his wife. ओ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस नाम को सुन के, मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले. I'm completely exhausted now. यानी यहाँ पे मिसेस बेनेट अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही है, ठीक है. I'm sorry to hear that. ओह, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है. Why didn't you tell me so before? अब मिस्टर बेनेट उसको बोलता है, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ, आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं कहा? Why didn't you inform me about it? If I had known as much this morning, I certainly would not have called on him. Called on is again a phrasal verb. It means pay a visit to someone. देखने जाना, visit, ठीक है. आपने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे ऐसा कि आप तंग आ गई आप मिस्टर बिंगले से? अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं डेफिनेटली, तो श्योरली मैं उससे मुलाकात करने नहीं जाता. बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट. बट द बिग बट इज, मैं उसको देखने गया हूं. आई हैव ऑलरेडी पेड द विजिट. वी कैन नॉट एस्केप द एक्वेंटेंस नाउ. नाउ वी कैन नॉट एस्केप, वी कैन नॉट अवॉइड दिस एक्वेंटेंस, ठीक है. वी कैन नॉट ड्रैग आवर फीट्स बैक, बिकॉज अब उसके साथ फैमिलियरिटी हो गई है, उसके साथ ऑलरेडी मुलाकात हो गई है. अब हम इससे बच नहीं सकते, ठीक है. सो आप देखिए, पहले ये जो मिस्टर बेनेट था, he appears to be a factless, a careless father who seems to be least interested in the marriage of his daughters, but in the heart of his hearts he really cares for them.
यानी एक बाप भी अपने बच्चे से प्यार करता है, एक माँ भी अपने बच्चे से प्यार करता है, बट मदर्स आर मोर वोकल एंड ऑस्टेंटेशियस देन फादर्स इन देयर एक्सप्रेशंस ऑफ लव। फादर्स ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो काम और रिजर्व्ड होते, बट इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स वो इस बच्चे से इतना ही ज्यादा प्यार करते, इतना ही डीपली प्यार करते जितने कि मदर्स करते। ठीक है, लेकिन बट दे डोंट मेक टू मच शो ऑफ इट। और ये जो इनका प्यार होता है, फादर्स का प्यार होता है, इट स्पीक्स थ्रू देयर एक्शंस मोर देन थ्रू देयर वर्ड्स। जबकि जब एक बच्चा रोता है, एक बच्चा बीमार होता है, एक माँ सिंपली वो मातम करने लगती है, वो चीखना और चिल्लाना, रोना शुरू कर देती है अपने बच्चे के साइड में जब बैठती है, और फिर बाकी लोगों को भी खबरदार करती है, मेरा बच्चा बीमार है, ऐसा हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये एक फादर ही ऐसा होता है जो जल्दी से तेजी तेजी दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास चला जाता है, और एक डॉक्टर को वहां से लाता है, और किसी को अपनी इस एंजाइटी के बारे में नहीं बताता है कि मेरा बेटा बीमार है या वो है। लेकिन जबकि माँ बहुत ज्यादा ऑस्टेंटेशियस होती है, वो सबको बोलेगी, ठीक है। लेकिन फादर्स ऐसे नहीं होते, और ये सारी चीजें विजिबल है इस स्टोरी में। ठीक है, आप देखना यहाँ पे, आप देखिए, आप मिसेस बेनेट को जब आप देखेंगे, वो बहुत ज्यादा एंक्शस होती है, शी इज फुल ऑफ एंग्जाइटी अबाउट हर डॉटर्स। ठीक है, और ये जो मिस्टर बेनेट होता है, ही क्वाइटली डज व्हाट ही इज सपोज टू डू विदाउट मेकिंग एनी अडू अबाउट इट, और अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड he proves that he is really an excellent father. ठीक है, so now the astonishment of ladies was just what he wished. जैसे उसने सोचा था, मतलब जब उनको ये पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी विजिट पे कर चुका हूं, जो उनको वो एस्टोनिशमेंट होगी, जो हैरानगी होगी उनको, जो उसने एक्सपेक्ट किया था ना, वैसे ही हुआ। एस्टोनिशमेंट मीन्स कंप्लीट सरप्राइज, वंडर। ठीक है, द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वाज जस्ट व्हाट ही विश्ड। जैसे उसने ख्वाहिश करी, जैसे उसने सोचा था, वही वैसे ही सरप्राइज मिला उनको। दैट ऑफ मिसेस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट। और इस एस्टोनिशमेंट में वो इतने ज्यादा खुश हुए, वो इतने ज्यादा खुश हुए, और मिसेस बेनेट बाकी फैमिली मेंबर्स को सरपास करती गई। शी आउटडिड देम। सरपास का मतलब होता है बी ग्रेटर और बेटर देन, और आउटडू करना। ठीक है, बाजी ले जाना, सरपास करना, मात देना, पीछे छोड़ना। और मिसेस बेनेट ने सबको सरपास किया इस एस्टोनिशमेंट में। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू माई डियर मिस्टर बेनेट, ओह यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड, यू आर अ वेरी गुड फादर एज वेल। कितना अच्छा है। बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट। लेकिन मैं जानती थी कि मैं आपको आखिर पर परसुएड करूंगी। परसुएड मीन्स मोटिवेट करना, कन्विंस करना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस समबडी टू डू समथिंग, especially by repeatedly asking him for that, उसको बोलते परसुएड करना। ठीक है, मोटिवेट करना, काजूल करना। और मैं जानती थी मैं आपको लास्ट पे मनाऊंगी। आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन एक्वेंटेंस। और मैं कॉक श्योर थी, आई वॉज डैम श्योर कि आप भी अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन एक्वेंटेंस। और आप इस एक्वेंटेंस को, इस जान पहचान को, इस फैमिलियरिटी को, ठीक है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वेल, हाउ प्लीज्ड आई एम, एंड इट इज सच ए गुड जोक टू। वेल, अब ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ अब, एंड इट्स सच ए गुड जोक। और आपने क्या मजाक किया हमारे साथ। टू, कौन सा? That you should have gone this morning and never said a word about it till now. यानी आप ऑलरेडी इस सुबह जा चुके थे वहां पे, और अभी तक आपने इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ठीक है, यू कैप्ट इट, यू डिडंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, यू कैप्ट इट बिहाइंड द कर्टन। नाउ किटी, यू मे कफ एज मच एज यू चूज, said मिस्टर बेनेट। अब मिस्टर बेनेट ने किटी की ओर देखा, और किटी से कहा, किटी आप जितना खासना चाहते हैं आप उतना खा सकते। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द
रूम, और यही अल्फाज कहते हुए वो फिर इस कमरे से बाहर जाता है. What an excellent father you have, girls, said Mrs. Bennet. And Mrs. Bennet turned towards her daughters and addressed them that you have got an excellent father. What a beautiful, what an awesome, what an excellent father you have, girls. When the door was shut, the moment the door was slammed, the door was closed. So she spoke these words, what an excellent father you have. So this is your story. I hope you have enjoyed and understood it. So I'll stop here. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.